ریاست کے بہت سے لوگ آپ کو اپروچ کریں گے. اب ہمارے ویڈیو دیکھنے کے بعد لوگ بہت سے آئیں گے, بہت سی خواتین, آپ پیغام کیا دیں گی؟ یہی دوں گی کہ آئیں ہاسپٹل کو, اپنا ہاسپٹل اس کو پروموٹ کریں, اچھا سیٹ اپ ہے, اور سپورٹ کریں گے تو ہم لوگ مطلب مزید بہتری کی طرف جائیں گے. اور تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں کے ساتھ, لوگوں سے. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آئیں, دیکھیں, ہماری جو کمیاں ہیں ان کو بتائیں ہمیں, تاکہ ہم اس کو ختم کر سکیں یا مستقبل میں بہتری کی طرف جا سکیں ہم لوگ. بہت خوشحالگی کے ساتھ ڈاکٹر فائزہ کہہ رہی ہے کہ آئیں. جب آپ آئیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے پیشانی پہ 12 بج جائے, لیکن ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ ڈاکٹر فائزہ ماہر ہیں, ان کو ہینڈل کرنا آتا ہے. آپ یہاں پہ آئیں, آپ ڈاکٹر فائزہ آپ کو مطمئن کریں گی فارمیسی سے ریلیٹڈ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر. تھینک یو, ویلکم. یہ راجہ محمد عزیز خان صاحب ہیں, یہ سینٹرس کے جی ایم ہیں, اور یہ جو امیلیاس ہاسپٹل ہے اس کے بھی جی ایم ہیں. اور ان کی بڑی کاوش ہے, یہ سعودی عربیہ میں رہے ہیں, سردار الیاس صاحب کے ساتھ رہے ہیں, اور جو سینٹرز کی پائلنگ تھی وہ بھی انہوں نے کروائی ہے. اور یہ جو ہاسپٹل بنا ہے اس میں بڑا کردار ہے ان کا. آئیے ان کے مختصر تاثرات بھی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. راجہ صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے, بڑی مہربانی. میں نے آپ کو فون کیا تو آپ کی بڑی نوازش. آپ نے کوئی ایسی بات نہیں, آپ جیسے عظیم انسان, اس سوسائٹی کے بڑے لوگ اگر ہمیں اپروچ کریں گے تو ہمارے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے تاثرات, آپ کی خدمات ہم لوگوں تک پہنچا سکیں. راجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا ایک لمبا چوڑا تعارف ہے, لیکن ابھی ہم کھل کے آپ سے بات اس لیے نہیں کر سکیں گے کہ ویڈیو طویل ہو جائے گی. مختصر, آپ سردار الیاس صاحب کے ساتھ بھی رہے. پہلے نمبر پہ امیلیاس ہاسپٹل کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ کتنے عرصے میں بنا, انویسٹمنٹ کیسے ہوئی, آئیڈیا کس کا تھا, یہ کس کا خواب تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آئیڈیا سردار الیاس صاحب کا تھا, یہ ان کی کاوش تھی. سارا فنڈ ڈیفینیٹلی انہوں نے جنریٹ کیا, انہوں نے دیا, اور اس کو بننے میں کوئی 5-6 سال لگے. اس کو ڈیزائن کس نے کیا؟ اس کا ڈیزائن ہم نے کراچی سے, ایک کمپنی ہے کراچی سے کرایا تھا, جس نے آغا خان ہاسپٹل کا ڈیزائن, وہی کمپنی ہے. اور کچھ شروع میں تو بلڈنگ بن گئی, پھر تھوڑا ڈیلے ہو گیا, لیکن جب سے الیاس صاحب کے جو چھوٹے بیٹے ہیں سردار راشد الیاس, جو ڈاکٹر بھی ہیں, اور انہوں نے پہلے اس کو تنویر صاحب دیکھ رہے تھے, لیکن جب سے ڈاکٹر راشد آئے تو پھر اس ہاسپٹل کی پروگرس بڑھی ہے. ان کی کاوش کی وجہ سے یہ آج آپ کے سامنے. کیا بات ہے. یہ بتائیں کہ سردار الیاس صاحب کا خواب تھا کہ یہاں پر ان کی والدہ کے نام سے ہاسپٹل ہو اور خدمت خلق ہو. بالکل ایسا ہی. ابھی تک وہ کتنے کامیاب ہو رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح ہے, آج بھی ہم اسی طرح کر رہے ہیں. جو یہاں کے یا کوئی بھی غریب, غربا, بیوہ, یتیم اگر کوئی ہاسپٹل میں آ جاتا ہے, یہ ہمارے بڑے سینئر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کلیم نہیں کرتے. 500 روپے کی وہ فیس ہوتی ہے, اور وہ بھی فار 1 ویک. ہفتے میں اگر کل ہونا چاہے, پرسوں ہونا چاہے, اسے دوبارہ کوئی فیس نہیں لگتی. یعنی پوائنٹ بھی نوٹڈ, آپ امیلیاس ہاسپٹل میں انٹر ہوں گے, آپ علاج کروانا چاہ رہے ہیں, آپ کے پاس پیشنٹ ہے, آپ 500 روپے ریسیپشن میں جمع کروائیں گے, اور اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں. 1 ہفتے تک آپ کی کوئی فیس نہیں ہوتی, یعنی اسی 500 میں ہی آپ کو آپ کے علاج ہوں گے. لیکن اگر آپ فارمیسی میں جائیں گے, وہاں میڈیسن کے پیسے لگتے ہیں ظاہر ہے, لیکن یہاں پر ماہر ڈاکٹر ہیں, آپ بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ اتنے دھکے کھا کے پنڈی جائیں گے, اسلام آباد جائیں گے, آپ کو جاتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے, پھر جو جھٹکے لگتے ہیں, اس کے علاوہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ الگ سی ٹینشن بنی رہتی ہے, وہ ماحول بنا رہتا ہے, اس کے اثرات الگ سے ہوتے ہیں. ہم ہارٹ کے اسپیشلسٹ سے بھی بات کریں گے, لیکن مجھے یہ بتائیں گا راجہ عزیز صاحب کہ ویسے تو ہم آپ کا آفیشیل ایک الگ قسم کا انٹرویو کریں گے آپ کی شخصیت کو لے کر, کہ آپ سعودی عرب گئے, سردار الیاس صاحب کے ساتھ رہے, سینٹرز میں آئے, آپ کی کیا خدمات ہیں سوسائٹی میں. لیکن امیلیاس سے ریلیٹڈ آپ ناظرین کو پیغام کیا دینا چاہیں گے
लास्ट मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद है। आपने खुद भी देखा है 24 आवर्स 7 डेज ए वीक हमारे पास डॉक्टर मौजूद होते हैं, ख़ास करके गायनों के अंदर गायनीज़ के डॉक्टर हर वक्त हमारे पास होते हैं। ये हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट सामने बैठे हुए हैं, ये 6 डेज ए वीक होते हैं, 24 आवर अगर कोई पेशेंट आएगा ये इवन रात को भी इनको उठाएंगे, ये नीचे आके चेक ब्रीफ ये बताएंगे कि आपके हमारे पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है उसके पास कोई पैसा नहीं है, मतलब कोई पैसे नहीं है, गरीब है, गुरबा है, ये हमारे जो चेयरमैन है सरदार इलियास, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि किसी से आप उनसे फोर्स ना करें। अगर उनके पास पैसे नहीं है उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करें। क्या बात है, जैसा सरदार इलियास साहब की ये काविश है कि उन्होंने अपने स्टाफ को कहा हुआ है कि किसी के पास अगर पैसे नहीं हैं तो उनको फोर्स नहीं करें, उनको फोर्स नहीं करें, बल्कि आप उनका इलाज करें, क्योंकि ये हॉस्पिटल उन्होंने गरीबों के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए ही बनाया है। राजा अजीज साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मेरी इंशाल्लाह आपके साथ दूसरी मुलाकात सेंटर्स में होगी और आपको इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट है उमेलियास हॉस्पिटल के डॉक्टर वाजिद। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आप? मैं जिला बाग से ताल्लुक रखता हूँ। आप हमारे डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा, ये बताएं कि उमेलियास हॉस्पिटल में जी, लोग आपको अप्रोच करेंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी को हार्ट अटैक हो गया जी, तो बड़ा तो वो उमेलियास में आ गया, आप जी, कंट्रोल कर लेंगे? देखें, हार्ट का जो मसला है, बाज़ औक़ात ये बड़े बड़े कार्डियक इंस्टीट्यूट होते हैं जी, उसकी पेचीदगी के ऊपर होता है किस नौयत का हार्ट अटैक है। तो ये हर एक पेशेंट में सेम नहीं होता, इसकी नौयत सेम नहीं होती। तो जो बेसिक हमारी एक आज़ाद कश्मीर की हद तक जो मेजॉरिटी सरकारी अस्पतालों में सहूलत मौजूद है, तो हमारी कोशिश होती है कि वो यहाँ पे हम उसके लिए पेशेंट को यहाँ से भागना जाना पड़े, रावलाकोट ना जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी कैथ लैब की सहूलत नहीं है, हमारे पास कार्डियक सर्जरी उस तरह की सहूलियात नहीं है। तो उस चीज़ में अभी हम लैग कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर में प्लान है कि उन चीज़ों के ऊपर हम मज़ीद रोशनी डालेंगे। अच्छा, बिल्कुल ज़्यादा डॉक्टर वाजिद साहब, आपको पता है रियासत है, गुर्बत है, हालात हैं, मौसम है, ऐसे में आपके पास पेशेंट आते हैं और रियासत भर के लोगों के नाम आप पैगाम क्या करें, बस मैं यही स्पेशली उमेलिया से रिलेटेड? उमेलिया से रिलेटेड ये है कि ये मैं सरदार इलियास साहब की काफियों को मैं सलाम पेश करता हूँ। देखें, कोई भी अस्पताल होता है, जिस तरह आप शौकत खानम की बात करें या कोई भी ट्रस्ट हॉस्पिटल होता है, वो 100% फ्री नहीं होता। एक अस्पताल को लाइक ये हो सकता है 1-2 साल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी चला लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि ये अस्पताल यहाँ पे एक बिल्डिंग नुमा शक्ल ही रह जाएगी, एक अस्पताल नहीं होगा। तो उसमें एक इसको लंबे अरसे तक इसको चलने के लिए इसके साथ आप तावन भी करें, और उसमें जो आपकी सोसाइटी में वो लोग हैं जो इलाज के लिए जिनके पास कोई मुयस्सर पैसा या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, तो बेसिक ये होता है कि उन लोगों को उठाना होता है हमने अपनी सोसाइटी में। वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका डिपार्टमेंट क्या है? मेरा डिपार्टमेंट बिलिंग डिपार्टमेंट प्लस कैशियर डिपार्टमेंट है। कैशियर डिपार्टमेंट। तो कितना कैश इकट्ठा करती है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक दिन में तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख तक चले जाते हैं। पिछले 2 मंथ से हम लोगों का जो है एटलीस्ट हम लोग 50 प्लस में जा रहे हैं, 50 लाख प्लस। अच्छा, उमेलियास हॉस्पिटल आपने ज्वाइन किया, मुतमईन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या पैगाम देंगी जहाँ के स्टाफ के हवाले से, डॉक्टर के हवाले से, अपने डिपार्टमेंट के हवाले से? जी, यहाँ का स्टाफ बहुत ही प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल लेवल के स्टाफ हम लोगों ने हायर किया है। एंड सेकंड ये चीज़ के जो ये चीज़ चल रही है ना कि मतलब न्यू हॉस्पिटल है, यहाँ का जो स्टाफ है इस तरह का कोई बात नहीं होगी, यहाँ एक प्रोफेशनल लेवल के स्टाफ हैं। और जो हम लोगों का डिपार्टमेंट है, आप लोगों को कोई भी यहाँ से कोई हॉस्पिटल के जो रूल्स रेगुलेशंस जो हो गए, उनके चेकअप वगैरह, फी वगैरह, वो हम लोग आपको डील करेंगे। कोई आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ जंडाठी से हूँ। जंडाठी से मुकामी है माशाल्लाह। आप तो फिर वो आपको आने जाने में, हम लोग लोकल्स को हो गए, पेशेंट को हो गया, हम लोग प्रॉपर उन्हें गाइड करते हैं। ये उमेलियास हॉस्पिटल सरदार इलियास साहब की काविश है, क्या कहेंगे आप? जी, हम लोग उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक हमें बहुत अच्छा तोहफा दिया। यहाँ एक छोटा सा एक गाँव है, गाँव में ये चीज़ एक बहुत जरूरी चीज़ होती है, लेकिन उन्होंने एक हमें बहुत अच्छे लेवल की चीज़ यहाँ प्रोवाइड की।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये जो एक्सरे है जी जी, कितनी देर में आप ये तैयार कर देते? हम 10-15 मिनट में हो जाता है। 10-15 मिनट में। अच्छा माशाल्लाह। तो जो यहाँ आपको जो सैलरी मिलती है, जो उमेलियास हॉस्पिटल का स्टाफ है, अमला है, जी जो मैनेजमेंट है, जी जी उससे आप मुतमईन हैं? जी जी, कब तक यहाँ पर टिके रहेंगे आप? इंशाल्लाह जब तक मौका मिला। बाहर की चाहता है, अगर बाहर चला गया तो फिर इधर, अभी बाहर जाने से पहले इधर ही काम करना है इंशाल्लाह। कितने घंटे काम करते हैं यहाँ पर? मैं 7 घंटे काम करता हूँ, बाकी उसके बाद और ऑन कॉल भी होता हूँ मैं। 7 घंटे कंटिन्यू काम जी जी, 7 घंटे काम। और उसके बाद जब आप on call हॉस्पिटल में इन होते हैं तो आपकी दुआ होती है या अल्लाह कब ड्यूटी का टाइम खत्म हो जाए? नहीं, ये नहीं होता क्योंकि मैं होता ही इधर ही हॉस्पिटल के अंदर ही। आप पैगाम क्या देंगे स्पेशली जो फील्ड है आपकी उससे रिलेटेड लोगों को, प्लस जो उमेलियास हॉस्पिटल में लोग आना चाह रहे हैं? मतलब पेशेंट या पेशेंट्स। अच्छा, पेशेंट के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है उमेलियास हॉस्पिटल का। जाते ये मैं कहूँगा कि हमारे पास एक्सरे डिजिटल मौजूद है, सीआर सिस्टम हमारा, हम वार्डों में भी एक्सरे करते हैं जिस तरह सरकारी हॉस्पिटलों में। माशाल्लाह इधर बहुत अच्छा सेटअप एक्सरे का लगा हुआ है। और मतलब लेटेस्ट मॉडल तो शिबा की हमारे पास मशीन लगी है, 150 mA की लगी हुई है, ठीक है। और 500 mA ये जो नेक्स्ट मशीन है ये 150 की है, और तोशिबा वाली 500 mA की है लगी हुई है, लेटेस्ट मॉडल लगी हुई है हमारे पास। माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्सरे होते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है। थैंक यू सो मच। ये है उसका डायलिसिस सेंटर। यहाँ पर 5 मशीनरी लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। और आप आएंगे ज़रा, ये बताएं कि ये 5 यहाँ पर मशीनें एडजस्ट की गई हैं, तो अब तक कितने लोगों का यहाँ पर डायलिसिस हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अंसर अब्बासी साहब आपका और यहाँ ये इलियास हॉस्पिटल भंगुई में होने से आपका शुक्रगुजार हूँ। असल में ये डायलिसिस सेंटर हमने अभी मशीनें 5 लग गई हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है इसको 1 अगस्त से जो है ना इसको ऑपरेट करेंगे जो है ना, या अगले माह से इसको जो है ना 1 अगस्त से यहाँ पर ये बहुत बड़ी सहूलत है कि जो लोग गुर्दे के अमराज में मुब्तला है उनको डायलिसिस होने हैं, वो बहुत दूर जाके डायलिसिस करवाते हैं, रावलाकोट में, गफराबाद में, रावलपिंडी में। ऐसे में ये आप सामने भंगोई में आ सकते हैं और आपके यहाँ पर जदीद मशीनरी है और आपकी डायलिसिस में। थैंक यू। मोहतरम नाज़रीन, जाते जाते आपकी गोशेगुजारी में बात कर लेता हूँ कि इलियास हॉस्पिटल सरदार इलियास खान साहब की बहुत बड़ी काविश है। जो मुस्तहिक तबका है उनके लिए फ्री है यहाँ पर। सरदार इलियास साहब ने कहा हुआ अपने स्टाफ को कि जो मुस्तहिक तबका आता है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनसे आप पैसों की डिमांड मत कीजिए, वगरना फिर भी यहाँ 500 रुपया फीस है, उसके बाद आपका इलाज होगा। वो आपको डिटेल यहाँ से सब मिल जाएगी, आप विजिट कर सकते हैं। हर तरह के डॉक्टर, माहिर डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। सरदार इलियास खान साहब के लिए हमारे दिल से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उनको दोनों जहानों में ढेर सारी इज्जत अता फरमाए। अल्लाह पाक उनको और उनकी फैमिली पर ढेर सारी रहमत नाज़िल फरमाए, क्योंकि सरदार इलियास खान साहब जैसे अजीम इंसान रियासत का कीमती असासा हुआ करते हैं, और सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं जो अपने बारे में कम, इंसानियत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आप सरदार इलियास खान साहब के बारे में कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन राय देने से पहले हम आपको ये बात कहते रहते हैं कि माइल कीजिए, कायल कीजिए, मगर किसी को घायल ना कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।